think this will be a great start. But we had agreed that you would check with me on what features to compare before building the chart. Let's just go over these criteria now and see if there's anything else you need to switch gears on. Okay? Effective delegation achieves more than just successful project outcomes. It builds trust for future delegations, helps employees develop new skills, and frees up managers, supervisors, and leaders for other tasks. Whether the project is large or small, a Leader's Guide to Delegating provides the skills and communication tools to effectively delegate any project. Chris did most of the research on this, and we hammered out these recommendations together. Nice work, both of you. क्लियर हुआ? तो मुझे 5 स्टेप्स बता सकते हैं क्या था डेलीगेशन के? Analyze the task. Sorry. बता चुकी हैं analyze the task. Yeah. Should I elaborate? Yeah. Analyze the task. Yeah. Then there was select to delegate. Select. The person you delegating. It's delegate. Next, third. Assign the task. Direction. Assign the task. Execute the task. Important है क्योंकि अगर आप इसमें मास्टरी हासिल कर ली Delegatee, by identifying the knowledge, skills, and attitude to successfully assign a task. The first step to effective delegation is to analyze the task. The leader should determine the goal, deadline, resources, and deliverables. So to keep costs down, the executive team has decided to outsource our warehouse, and they're relying on me to recommend a vendor. Next, the leader selects a delegatee by identifying the knowledge, skills, and attitude that are needed to carry out the task. Based on what I've seen lately, Chris's analytical skills are really strong. In step 3, the leader assigns the task using a tool called the Delegatee's Checklist. This checklist will guide the delegation conversation so that the task can clearly be explained in detail. The goal of this project is to recommend a new fulfillment vendor to Frank by doing research and comparing 4 or 5 companies. In step 4, the delegatee gets to work. During the task execution, it's important for the leader to inform key employees of the delegatee's task and level of authority. I got Maggie's email asking me to help out with anything you need. Great, thanks. Step 5 highlights the importance of conducting regular feedback sessions. This allows the leader to catch problems early and coach the delegatee back on track if necessary. I'm glad you're taking initiative, Chris, and I think this will be a great start. But we had agreed that you would check with me on what features to compare before building the chart. Let's just go over these criteria now and see if there's anything else you need to switch gears on. Okay? Effective delegation achieves more than just successful project outcomes. It builds trust for future delegations, helps employees develop new skills, and frees up managers, supervisors, and leaders for other tasks. Whether the project is large or small, a Leader's Guide to Delegate provides the skills and communication tools to effectively delegate any project. Chris did most of the research on this, and we hammered out these recommendations together. Nice work, both of you. Step 1. स्टेप 5 क्या था? Feedback session. कंडक्ट कर देना चाहिए। अब डेलीगेशन के तरीका समझ में आए किस तरीके से डेलीगेशन होती है। हमने यहाँ पे चीजें अपने नोट डाउन करेंगे, लोग डिले क्यों करते हैं टास्क, सही ना? जो आप किसी को आगे डेलीगेट करते हो, हमें अब समझ में आ गया। स्टेप 1 में ही हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि किसका क्या इंटरेस्ट है, बेसिकली उसके स्किल्स क्या है, सही है? डीमोटिवेशन, जब आप उससे फॉलोअप ले रहे हो, उससे पूछो आपको आता है नहीं आता। फिर हमने कार्टून बीच में देखा था उसको नहीं आता था, सही ना? तो उसको छोड़ के नहीं चले गए करो करना जैसे भी करना, नहीं, उसे एक दफा उसको सिखा दिया इसको इस तरह से करना है। उसके बाद फिर उसका एटीट्यूड कैसा था? अब तो कर सकते हैं, अब तो लिया हो गया और जितने भी काम है। जब वो खुद उसके लिए ग्रोथ की फीलिंग आएगी, उसकी मोटिवेशन भी बढ़ेगी, उसका इंटरेस्ट भी जॉब में बढ़ेगा, उसका एक लॉन्गर पीरियड होता है एम्प्लॉयमेंट को। तक इंटरेस्ट की बात खत्म, नॉलेज की बात खत्म, फॉलो की बात खत्म, जितने हमने इशूज निकाले थे सारे खत्म हो गए अगर हम सही तरीके से उसको डेलीगेट करें टास्क को, तो टास्क पे टाइम पे होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है फॉलोअप की, सही। अगर हमने टास्क दे दिया कि 10 तारीख को जो है ना ये दीवार तोड़ दी, आपको 10 जून तक का टाइम है,
और एक बार तो नहीं है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि रिमाइंडर लगा देते हैं, कुछ भी एक हमने नोट डाउन किया, जब 10 तारीख आते हैं फ़ोन करते हैं क्या हुआ, वो तो यूँ हो गया था, वो हो गया था। तो फॉलो हमेशा डेडलाइन को नहीं लेते कि उस टास्क में क्या हुआ। अगर आप लीडर हैं, मैनेजर हैं, जिस भी पोजीशन को करें, तो आपने डेडलाइन से पहले फॉलो स्टार्ट कर देना चाहिए कि उस काम की प्रोग्रेस क्या है, कहाँ तक पहुँचा है, गए कि नहीं गए, किसी से पूछा, कोई मसला आ रहा है, सही ना, उससे कौन सा फॉलो है। और एक खासतौर पे हम लोग थोड़े से धक्के के आदमी हैं, कहना तो चाहिए जूते के आदमी हैं। हम लोग जब तक हम पे प्रेशर नहीं पड़ता ना, हम लोग करते ही नहीं जाते। टास्क जब हमें दिया जाता है ना, तो हम बोलते हैं कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम, श्योर बॉस, हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यस ऑफ कोर्स मैं ही करूँगा, और कौन करेगा। लेकिन जब उसको काम करने की बारी आती है तो बॉस पूछ नहीं है तो करूँगा, ये काम तो कर लो, वो काम नहीं कर लो। तो हम बहुत ज़्यादा इधर उधर जो है ना, फलाना वेबसाइट खोली, 2 लिंक्स और खोली, 3 लिंक्स और खोली, यूट्यूब पे चले गए, सजेस्टेड उसकी वीडियोस में और चले गए, तो इतने खो जाते हैं। फिर एक बॉस की कॉल आती है, फलाना काम का क्या हुआ, ओ अच्छा मैं करता हूँ, अच्छा मुझे याद आ गया। तो फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने फॉलोअप नहीं करा तो भी सारे मसले स्टार्ट हो जाएंगे। वो बताएंगे नहीं, इसको आता है कि नहीं आता, वो उसका इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो भी नहीं शेयर कर रहा होगा, इसके नहीं तो आपको पता ही नहीं, जब आपको पता ही नहीं तो उसका ही नहीं कैसे। तो डेडलाइन से पहले फॉलोअप इंपॉर्टेंट है। अब फॉलोअप के डिफरेंट मीडियम्स हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं फॉलोअप, किस किस तरीके से किया जा सकता है। ईमेल हो गया, और SMS। ईमेल का लोग 24 घंटे के अंदर रिप्लाई नहीं करना, क्या करना चाहिए, हाँ एक SMS भी हो सकता है, SMS भी हो सकता है, कॉल हो सकती है, और क्या हो सकता है, सर फेसबुक पेज जहाँ पर सोशल मीडिया ट्वीट, और सैटेलाइट फोन, और ईमेल हो गया। आपने ईमेल रिमाइंडर डाल दिया कि प्लीज सर्व दिस एज अ सॉफ्ट रिमाइंडर, व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ द फलाना टास्क, और व्हाट इज द प्रोग्रेस स्टेटस। हम ये बात कर सकते हैं। नहीं आ रहा है रिप्लाई तो हम फिर, अगर मेरे पास ईमेल का रिप्लाई नहीं आ रहा तो मैं क्या करता हूँ, फौरन से एक SMS जाता है क्विकर फॉर्म में। जब मैं ऑन द मूव होता हूँ ईमेल के टाइम में, तो मैं एक SMS ड्रॉप कर देता हूँ, ये होने वाला है, जल्दी से इसकी तैयारी हो जाए, मुझे ये इशूज आ रहा है, ये करना है। SMS के रिप्लाई नहीं करना, फिर क्या करना चाहिए, कॉल करनी चाहिए। नॉर्मली आप उठ के आते हैं, टेबल से पहुँचते, कॉल करने क्या वो फलाना टास्क, कॉल नहीं पिक कर रहा तो फिर क्या करते हैं, कॉल अगर आपने पहले कॉल कर लिया और कॉल पिकअप नहीं कर रहा तो आप ब्रीफली अब मैसेज उसी को कर दिया करें। क्योंकि अब जैसे मुझे अंदाजा है ना कि मेरे पास इतनी कॉल्स आती हैं कि अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ या मैं रेडी हो रहा हूँ आने के लिए ऑफिस से, मैं जा रहा हूँ रास्ते में, तो 3-4 कॉल्स जो है लास्ट में मिस आउट हो जाती हैं। तो लेकिन मैं उसके ही रिप्लाई दे पाता हूँ जो जिसके में मेरा मैसेज आता है, हाँ ये इसकी कंसर्न ही है, ठीक है, मैं इस पर रिप्लाई करने से रिप्लाई करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं, जैसे सुजाना की कॉल मिस आउट हो गई, पूरा सेशन करा दिए थे, तो हो जाती है कॉल मिस। जब तक मेरे पास SMS नहीं आता मैं थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे लिए इसको रिप्लाई करना। तो SMS करें, कॉल करें, ईमेल करें, ना हो तो पास पहुँचे, कोई सिविल मसला तो नहीं है, क्या बताओगे, डिमोटिवेशन इतनी ज़्यादा हुई कि वो शट डाउन कर लिया कमरे में कि मैं नहीं कर रहा है, किसी ने मुझे उसको बुरा भला कह दिया, तो आपने जाकर इसको चेकअप करना होता है कि क्या वजह है, क्योंकि इन दी एंड क्या मैटर करता है, रिजल्ट्स। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, आपकी अपनी होती है। आप टास्क असाइन करते हैं इंटरेस्ट करते हुए, कहीं कर लेगा, लेकिन आप उसको फॉलोअप रखना होता है। और फॉलोअप के बाद जब टास्क हो जाता है तो आखिर में उस बंदी ने क्या करा मूवी में कि बॉस के पास गई और साथ में उस बंदे को साथ ले गई जिसने पूरी रिपोर्ट बनाई है, और अप्रिशिएट किस तरह से करके बॉस को एक्नॉलेज करा कि मोस्ट ऑफ द टास्क इसने ही करा एंड वी एंड आई डिड द थिंग्स एंड दिस इज द थिंग। तो बॉस ने क्या कहा, कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। तो अब बॉस की वजह से आपको तो मिलता है ना, मतलब बॉस ने कह दिया आपको तो आ गई, उस बंदे में मिला हुआ तो वो और आपके लिए फिर आगे जाके काम करेगा कि नहीं यार ये बराबर ही क्रेडिट मिलता है, यहाँ पे जाना चाहिए। तो क्रेडिट इशूज, परफेक्शन, ट्रस्ट, इनसिक्योरिटी सब खत्म हो जाती है। इनसिक्योरिटी कैसे खत्म होगी, क्रेडिट तो आपने बांट लिया, तो ये ना, और सामने वाला आपके लिए जो आपके सबॉर्डिनेट है आपसे ज़्यादा लॉयल है कि यार ये अच्छा बंदा है, बॉस तक भी वैसा ही दे रहा है, नॉर्मली नहीं देते लोग, बहुत सारे लोग नहीं देते। परफेक्शन आपने सही कर दी कि उसको बार-बार उसके बराबर से फॉलोअप लिया, उसको समझाया किस तरह से करना है क्या नहीं करना, और उसके बाद उसको लेट गो भी करा कुछ चीज़ों में कि अगर मैं आपको प्रेजेंटेशन बनाने को कहा तो मैंने ये नहीं कहा कि वीडियो बना के लाओ अपनी या आप पावर पॉइंट पे बनाओ या खड़े होकर करना, फील फ्री, जो आप कम अप हो सकते हैं आपने प्रेजेंट करना है इन दी एंड।
अब जिसने जितने एफर्ट लगाई है उसका उसको रिटर्न मिलेगा कि हाँ वैसे इतने एफर्ट लगाए तो उसके स्कोर इतने हैं और इतने। तो ये जो परफेक्शन है आपको थोड़ा सा लेट गो करना पड़ता है, वरना अगर आपको कोई सीरियस मसला है, कोई डॉक्टर है उसे किसी से मतलब असिस्टेंट सर्जरी कोई कर रहा हो, तो फिर आप उसे परफेक्शन पे इसको लेट गो नहीं कर सकते। फिर आपको उसको अवेयर करना होता है कि आपने इसी तरह से करना है। सही है। ट्रस्ट जब आप मुसलसल फॉलोअप में होंगे तो आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कि हाँ ये है या नहीं है, और अगर नहीं बिल्डअप हो रहा तो आपको पता है कि अब आपने क्या करना है, आपने शिफ्ट करना है, किसी और को टास्क देना है। ये जो भी सिचुएशन आपके पास टाइम होना चाहिए फॉलोअप के लिए। इनसिक्योरिटी कैसे रिमूव होगी? जॉब सिक्योरिटी होगी। जब आप मैनेजर होते हैं तो आपके पास एक नहीं 3-4 बंदे तो एटलीस्ट होंगे ही होंगे। सही है। जब वो ग्रोथ कर रहे होंगे, इनके 5 टारगेट हैं, इनके 5 टारगेट हैं, इनके 5 टारगेट हैं, ठीक है, तो बॉस के पास क्या गया, इन्होंने 5 टारगेट करे, इन्होंने 5 टारगेट करे, इन्होंने 5 टारगेट अचीव कर लिए, ये बॉस है, इनके मैनेजर है। तो बॉस के पास इनका टारगेट क्या गया, इन्होंने 15 टारगेट्स अचीव कर लिए, प्लस इनके 5 और 20 टारगेट्स अचीव हो गए। तो इनकी इनसिक्योरिटी किस बात की? बंदा जितना ऊपर जाता है उतना ही उसकी ग्रोथ होती है, तो कभी भी नीचे नहीं जा सकता। अगर वो ग्रो कर रहा है, डेलीगेट कर रहा है और टारगेट्स अचीव कर रहा है तो वो हमेशा ऊपर ही आएगा। लेकिन ऊपर वो जाने की सूरत हाल उसकी तभी बनेगी जब ये भी ग्रो करेंगे, ये भी ग्रो करेंगे, ये भी ग्रो करेंगे। कभी भी लीडर फॉलोअर से ज्यादा डिस्टेंस पैदा नहीं कर सकता। केवल लीडर के पास तो इतनी सारी नॉलेज है, फॉलोअर के पास इतनी सी है, ऐसे कभी भी नहीं होगा, ब्रेकअप हो जाता है, या तो लीडर गिरेगा या वो नीचे वाला वो चलाएगा छोड़ के। तो हमेशा गैप बहुत कम रहता है लीडर का। तो लीडर के पास नॉलेज है, उसे फौरन ट्रांसफर करनी होती है नीचे, ताकि ये ग्रो करेगा तो आपको और पुशअप करेगा आगे आने के लिए। तो टास्क आपने देने ही देने, और ऑर्गेनाइजेशन भी इसी तरह से ग्रो करती है। जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है उस तरह से नहीं कि वो एक बंदा बैठा हुआ वही कमा रहा, वो इंटरेस्ट करते भाई आप डायरेक्टर बन गए, आप मार्केटिंग में गए, उस सीईओ को फायर कर दी थी कार्टून में, तो सीईओ उसने अपॉइंट करा, वो फाउंडर होगी समथिंग जो भी, तो सीईओ को फायर कर सकती है। तो इंटरेस्ट करेगा तुम कंपनी चलाओ, तो ये ओनर हो सकता है कोई और साइड पे बैठा हो, ट्रस्ट करा, स्किल सेट देखा, उसको नॉलेज दी, डायरेक्शन दी, अब वो फारिग है, वो सीईओ फारिग भी कर सकती है, मीटिंग्स पे भी जा सकती है, जो करना चाहे कर सकती है। तो आपने ग्रो साथ करना होता है, ग्रो की सूरत जानी बनती है तो आपने टास्क डेलीगेट करें। और डेलीगेट करने से ये चीज़ भी आती है कि इनोवेशन बहुत ज़्यादा आती है कंपनी में। मैं अगर प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो शायद वीडियो चलाऊँ, तो दूसरा कोई आता हो सकता है वो पीपीटी चलाए, तो एक डिफरेंट फ्लेवर मिलता है, टेस्ट मिलता है कि हाँ ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। तो कंपनी में जब इनोवेशन आती है तो नए आइडियाज फिर दोबारा से स्प्रिंग अप होते हैं कि हम इसको यूँ ना करना है, इसको ऐसे क्यों ना करना है। सही है। तो ये था आज का टॉपिक, और फाइनली वो टॉपिक है जो हमने टाइम पे खत्म कर दिया। अच्छा, कल आप लोगों ने आना है और कल आइएगा ज़रा समझ के आइए। कल कुछ क्लास या साइंस लैपटॉप लाना है, लैपटॉप वो कल